बधानी स्थित द इंडियन हेरिटेज स्कूल में आज बतौर प्रिंसिपल डॉक्टर पीएस कालरा ने अपना कार्यभार संभाल लिया। बता दें कि डॉक्टर कालरा ने देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के बाद द इंडियन हेरिटेज स्कूल में अपना कार्यभार संभाला है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर पीएस कालरा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिखरों पर ले जाना है। इसके लिए बच्चों को राइटिंग और लर्निंग के साथ साथ उनके विषयों पर उनका ध्यान फोकस करना रहेगा, ताकि वह हर चीज को अच्छी तरह से अनुभव करके उसमें आगे माहिर हो सके। इसके अलावा और क्या कहना है प्रिंसिपल डॉक्टर पीएस कालरा का, आइए आपको सुनाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन द इंडियन हेरिटेज स्कूल फ्रॉम द 1st of April. My name is Dr. Paramjit Singh Kalra. We have in our school, why should we choose Indian Heritage School? Number one, outstanding academics. We have a very highly experienced faculty and staff. All the teachers are postgraduates, they are trained teachers and they know their subjects. Most of all, they can all speak very well in the English language. They can express properly and they can make you understand properly. We have modern and diverse facilities. It's a very safe and an inclusive environment. Also, we are a co-education school up to standard 12. We have all smart class facilities and we have proper video facilities for children. It's a day cum boarding facility school. Day cum boarding facility, boarding of course you know, but day facility, I believe that the child studies here, eats the food here, and finally when the child leaves for home at 3:30, 4 o'clock, then the child goes back without any books. किताबें लेके वापस नहीं जाएगा बच्चा, घर सिर्फ इंजॉय करने के लिए जाएगा, अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए जाएगा और अगले दिन वापस आएगा। सारे का सारा पढ़ाई का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ स्कूल करेगा, उनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इट्स नॉट such a good idea according to me. We have enough time to teach them, we have enough time to do written work with them, we have enough should I say opportunities of guiding them in such a manner that there is no requirement to give homework and for them to do any work at home besides the days when they have to prepare for exams. That's a different issue altogether. We have a fleet of transport and various sporting activities. We have swimming, we have a shooting range, we have lawn tennis, we have yoga, we have labs of science and computers. I intend making geography labs, I intend making an English lab, a language lab, a history lab, and also labs for mathematics. We have enough area, we have a good infrastructure, these 4 or 5 labs. इन लैब्स के साथ क्या फ़ायदा होता है कि द चाइल्ड सीज समथिंग, ही फील्स इट, ही अंडरस्टैंड्स एंड देन ही कैन डू हिज सब्जेक्ट बेटर इंस्टेड ऑफ द टीचर ओनली कमिंग, गोइंग टू द ब्लैक बोर्ड एंड मेकिंग डायग्राम्स एंड टीचिंग द चाइल्ड. Here, when there is a lab, we have got instruments, we have got equipment, they can see that and they can do it. In a geography lab, they have globes and they look at the globe and they can turn it around and they can see the countries, they can understand what is rotation, they can see what is axis, how there is day in one country and there is night in another country. Like this, in every subject, we can have a lab. This is a modern thing which we must have. कौन सी अदब से बात करनी है, किस हिसाब से बात करनी है, एक प्रोटोकॉल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई जाती है आर्मी में और डिफेंस के अंदर. प्रोटोकॉल इज समथिंग विच इज़ नॉट टॉट इन स्कूल्स, बट प्रोटोकॉल का एक हिस्सा और विभाग होता है एटिकेट्स, मैनर्स. उठ के किसी को कुर्सी पे बिठाना, उठ के किसी को करना, अच्छे तरीके से नमस्ते सिर्फ ऐसे नहीं करना, झुक के करना. अगर आप किसी के पैर छू रहे हो तो वो भी ढंग से छूने और सिर्फ अपने ऐसे करके हाथ नहीं थोड़ा सा नीचे करना. ये सब प्रोटोकॉल और एटिकेट्स के अंदर आते हैं जो कि बच्चों को बचपन में सिखाया जाना चाहिए. गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स बच्चों को बचपन में सिखानी होती हैं, तो तभी वो जाके बड़े जब होते हैं तो वो अपनी फैमिली के अंदर सिखाते हैं. देन आई वॉन्ट टू टीच देम मेक ओवर स्किल्स. मेक ओवर स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं मेक ओवर स्किल्स के. उन मेक ओवर स्किल्स के अंदर छोटी से छोटी चीज़, छुरी और कांटे को कैसे पकड़ के खाना है, खाते समय आवाज़ तो नहीं बनानी है, खाते समय
प्लेट के ऊपर आवाज़ तो नहीं आ रही है, यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक दैट। पब्लिक वर्कशॉप्स लेके और प्रेजेंटेशन स्किल्स, हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे नहीं करना है जब आप कुर्सी से उठ रहे हो कुर्सी को आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अपना आराम से वापस कुर्सी को रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें मेक ओवर स्किल्स के अंदर आती हैं। सॉफ्ट स्किल्स एंड मेक ओवर स्किल्स, आई एम अ स्पेशलिस्ट एंड अ ट्रेन्ड पर्सन इन ऑल दीज थिंग्स। आई ऑल्सो take a lot of workshops for teachers. I would like to give teachers workshops on etiquettes, manners, protocols and all that, so that when I teach my teachers to do this, they will be able to teach also the students. This is my focus and my key focus. May God help me. I can always say one thing for sure. Whatever anyone may say that I have done this and I have done that and so has done this, मैंने अपनी मेहनत से किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, मत कोई जानो अवर किच, सब प्रभु के हाथ। कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने कुछ किया है। ये सब उस प्रभु के हाथ में, ये सब उस परमात्मा और परमेश्वर के हाथ में। आई हैव माई फोल्डेड हैंड्स टूवर्ड्स गॉड्स, that I will work hard with my teachers and may God give his bakshish to all of us and हम लोग successful हों and Indian Heritage School rises from heights to heights and to greater heights. Thank you very much for your support and thank you very much for coming.